Welcome back, students. I hope you all are safe at home. Today we are going to learn limitations of accounting. In previous video you studied about the advantages, objectives of accounting. Today we are going to learn about what are the limitations of accounting. Let's start. First is non-financial transaction. In accounting, those transactions are recorded, the value of which can be measured in terms of money. For example, purchase sale of material, purchase sale of asset, etc. The qualities like honesty, loyalty, commitment of employees working in the organization play significant role for the development of business. These aspects are not considered in accounting. True. अगर कोई भी एम्प्लॉयज होते हैं उसकी एफिशिएंसी, उसकी ऑनेस्टी, उसका कमिटमेंट, which are the most important aspects of the business, which are going to the most profitable company of the year, right? अगर वर्कर्स की जो मेहनत है उसको तो कंसिडर किया नहीं जाता अकाउंटिंग में, तो यहाँ पे ये जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो क्या बन जाते हैं? लिमिटेशंस. हियर ओनली रिकॉर्डेड द परचेस एंड सेल्स of goods या तो फिर purchase and sales of asset which are the value about money, जो मनी में मेजर किए जाते हैं. इन टर्म्स ऑफ मनी में जो भी मेजर किया जाता है वही जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में, और क्वालिटीज जो है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता. तो यहाँ पे जो है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ये क्या बन जाता है अकाउंटिंग के लिए? लिमिटेशन. उसके बाद है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी. अकाउंटिंग assumes that value of money is stable. For example, an asset was purchased before 5 years for 50,000. If replacement is required to be done, then in this case more than 50,000 has to be paid to acquire same type of asset due to inflation. Accounting assumes that the value of money remains stable. Practically, this is not possible. A stable value of money assumption can be treated as a limitation of accounting. 5 साल पहले जो असेट हमने परचेस की थी वर्थ ₹50,000. Today, if we have to decide to sell the asset, so what price we consider? The previous price 50,000, but due to inflation in present times the price of that asset will be increased. But in accounting the increasing or the flexible price does not consider. Which price considered? Post price, the price which we purchased in past. यहाँ पे स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी जो 50,000 का असेट परचेस किया था, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अभी भी उसकी प्राइस क्या है? 50,000, बट इन्फ्लेशन की वजह से उसकी प्राइस क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है. लेकिन हमें तो कौन सी प्राइस लेनी है? 50,000 ही लेनी है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और कंपनी के लिए वो रिलायबल भी नहीं है, अफोर्डेबल भी नहीं है. लेकिन यहाँ पे ये अजम्पशन हो जाता है, ये लिमिटेशन हो जाती है कि स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी को ही कंसिडर किया जाता है. The third is historical transactions events. In accounting, historical transactions or events are recorded. No corrections are allowed in transaction for any mistakes, but still historical transactions and events are useful to take future decisions. यहाँ पे कौन से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है जो कि हिस्ट्री में बन चुकी है, पास्ट में जो इवेंट्स ऑक्योर हो चुकी है उस इवेंट्स को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है. उसमें मिस्टेक हो गई हो तो भी वही यूज करना है. बाद में अगर हम उसको रेक्टिफाई कर भी पाए, लेकिन इवेंट्स तो हमें कौन सी लेनी है? पास्ट की. क्यों? फ्यूचर डिसीजन के लिए. अगर पास्ट की इंफॉर्मेशन सारी हम निकालेंगे, पास्ट में जो हुआ जरूरी नहीं है कि सेम प्रोसेस जाए फ्यूचर के लिए. प्रेजेंट में जो भी हो रहा है उसके हिसाब से फ्यूचर का डिसीजन लेना क्या है? बेनिफिशियल है फॉर द एनी कंपनी, फॉर एनी बिजनेस, राइट? सो यहाँ पे हिस्ट्रिकल इवेंट्स आर द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग. उसके बाद है अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू को क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है. द वैल्यू ऑफ असेट कीप ऑन चेंजिंग. Their market price keeps on changing. In accounting, market value is ignored.
and only actual cost-based treatments are given. अब 11th standard में you studied about the chapter depreciation. In depreciation, the depreciation is calculated on which price? Cost price. मार्केट प्राइस के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है? नहीं किया ना। तो अभी जो उसकी प्राइस है उसके ऊपर उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बदले क्या किया जाता है? पास्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस को कंसीडर किया जाता है, मार्केट प्राइस को क्या किया जाता है? अवॉइड विच आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। ये एक्चुअल अकाउंटिंग नहीं हुई, ये एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं हुई। उसके बाद है यूज ऑफ एस्टिमेट्स। यहाँ पे क्या यूज होता है? एस्टिमेट। एस्टिमेट किया जाता है प्राइस को या तो फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को। इन अकाउंटिंग items like bad debt reserve is determined on estimation. If estimates are mistake oriented wrong, it will be reflected in the account, but these kind of estimates are done on the basis of past experience and logic, so possibility of mistake remain minimum. यहाँ पे क्या होता है? bad debt reserve को क्या किया जाता है? assume किया जाता है। हमने फाइनल अकाउंट में भी फाइनल अकाउंट में हम करते थे बैड डेट रिजर्व 11। यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में आप करोगे आगे फाइनल अकाउंट जो भी आएगा उसमें क्या किया जाता है? बैड डेट रिजर्व को अज्यूम किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर बैड डेट हुई, अगर कोई भी डेटर ने हमें रुपए नहीं दिए तो इतने % क्या करना है? एस्टिमेट करना है। अब एस्टिमेशन जरूरी नहीं है कि सही हो, और एस्टिमेट भी किस हिसाब से किया जाता है? फॉर द पास्ट सिचुएशन which are not beneficial, which are not reliable. तो यहाँ पे यूज ऑफ एस्टिमेट्स जो भी किया जाता है वो लिमिटेशन बन जाती है अकाउंटिंग के लिए। उसके बाद है ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। These are two important components of account: profit and loss account and balance sheet. Profit and loss account, which is known as income statement, is prepared on current prices, while items of balance sheet are disclosed at old price. These kind of disparity prevails. यहाँ पे क्या होता है? ड्यूअल स्टैंडर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मोस्ट इंपोर्टेंट टू कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। आप डेप्रिसिएशन का जो मैंने बोला था 11th में पढ़ोगे, मैंने बोला कि आप 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन 11th में अब आप पढ़ने वाले हो, आगे आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर आएगा, राइट? सो यहाँ पे ड्यूअल स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट दे हैव टू talking about two components of accounts: profit and loss account and balance sheet. Profit and loss account, which is known as income statement. Profit and loss account क्या है? income statement है। is prepared on the current price. वो किस प्राइस पे बनता है? करंट प्राइस पे। और बैलेंस शीट जो है वो किस प्राइस पे बनता है? हिस्टोरिकल प्राइस पे। यहाँ पे भी अकाउंट्स में क्या है? ड्यूअल स्टैंडर्ड। मोस्ट टू इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंट्स, बट बोथ आर डिफरेंट। P&L अकाउंट में कौन सी प्राइस ली जाती है? करंट प्राइस। एंड बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल प्राइस। तो यहाँ पे ये जो है ड्यूअल स्टैंडर्ड प्रिवेल्स है। In spite of having this limitation, accounting has very practical and important role of owners of business. Limitation, तो देखो एवरी जो ट्रांजेक्शन होता है, एवरी सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशन को अगर हम अवॉइड करें तो अकाउंटिंग जो है वेरी प्रैक्टिकल इन फॉर बिजनेस। अब यहाँ पे एक टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है किसकी? बिजनेस की। अगर बिजनेस कुछ बोल नहीं सकता लेकिन वो अपने अकाउंट्स के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक तक पहुंचा सकता है। अकाउंटिंग इज नोन एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। Through accounting, information of business transaction is provided through language, either by writing or speaking or analyzing or interpreting any content is described or explained by one person to other. This function is performed by accounting. Accounting में क्या होता है? सारी जो information है वो person through लोगों को दी जाती है। Language is used with its own predetermined norms. Accounting is also used with its own predetermined rules. Language has a feature or of flexibility, hence time-based changes are incorporated in it. In accounting, also time-based changes are incorporated. In brief, accounting provides information of accounts, thus it works as a language.
इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट जो है प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, इसलिए उसको बोलते हैं द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लैंग्वेज कौन सी है? अकाउंटिंग। उसके बाद है इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट? क्या अकाउंट जो है वो साइंस है या तो फिर आर्ट है? साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। साइंस क्या है? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के थ्रू ही चलता है। और यहाँ पे अकाउंटिंग ऑल्सो हैव देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। देयर कुछ रूल्स ऐसे हैं अकाउंट में जो कि फॉलो किए जाते हैं। तो अकाउंट के भी कुछ रूल्स हैं, उसके हिसाब से ही अकाउंटिंग होती है, और साइंस के भी रूल्स है, उस हिसाब से साइंस चलता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग को क्या बोला गया है? साइंस बोला गया है। Accounting is also a science. Its formation is based on rules and universally accepted principles prepared by human beings to record economic transaction of the business. They are classified on the basis of accounting rules. To record transaction, an individual skill is not required. Only rules are to be followed. Rules को ही follow करना है कि आया क्या आया बिजनेस में, क्या बिजनेस में से गया, उस हिसाब से उसकी एंट्री करनी है। तो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल्स, सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज अ साइंस। Apart from science, accounting is known as an art also. Accounting is mainly categorized into three categories: financial accounting, cost accounting, and management accounting. Keeping the limitation of these accounting in mind, a specific skill to prepare account is also required. The presentation of anything in a different manner without changing its nature and meaning is known as an art. अब art भी है क्योंकि आप अकाउंट को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, आप अकाउंट को किस तरह से टेब्यूलेट करते हो, वो भी जरूरी है एक इफेक्ट देने के लिए। पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। और प्रेजेंटेशन किससे मिलेगा? अगर पर्सन के पास ऐसी स्किल होगी तो। तो अकाउंटिंग इज साइंस एंड आर्ट। यहाँ पे अकाउंटिंग को साइंस भी बोला गया है और आर्ट भी बोला गया है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना, लिमिटेशंस की हमने अकाउंटिंग की। उसके बाद अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट, ये टॉपिक हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस